A very, very, very good morning to all of you. Very happy and excited to begin this day with power and with all of us here together. And especially today, आज बहुत ही exciting day है, exciting chapter है. I can't wait to just dig in. All right, I think we start. I can't wait to start today. Hi, Bhumi. Hi. Hello, hello. So today again, we are just going to dive more into this power, into this pyar, into this love. यहाँ पे हर पेज में we are just going to discover different flavors of what this power is. And आज का flavor is about the power and us. Like ये बहुत विशाल force में where do we fit in? Like, what is our role? What really are we doing here? And ये पावर और हमारा क्या रिश्ता है सो द पावर ऑफ लव बोलो पावर ऑफ अट्रैक्शन बोलो द पावर ऑफ क्रिएशन बोलो जो ये सारी गैलेक्सीज सारे लोग सारे इंसान सबको चला रहा है जो हमें भी चला रहा है राइट बट कंपेयर टू दिस पावर हमारा पावर इज मच बिगर हमारा पावर इज मच वी आर लिटरली द मास्टर ऑफ दिस पावर कि ये पावर जो पूरी कायनात को चला रहा है वो हमारे सामने झुक जाता है इट इज द सर्वेंट टू अस जो हम इसको बोले हमारी ये पावर मेरे को कुछ ब्लॉक्ड लग रहा है एम आई ऑडिबल कैन समबडी अच्छा हाँ ओके यस सो जो पावर सबको चला रहा है दैट वेरी पावर विल it's blocking for me but it's fine अगर if my voice stops let me know. Okay, I think it's all fine for us. Okay, all right. के सामने झुक जाता है our power is greater than this power also so today we are going to discover free will and choice कि ये free will क्या है ये choice क्या है and हमारा और इसका रिश्ता क्या है yesterday we heard कि we are all meant to have an amazing life and we have all the power to create it तो क्यों नहीं है हमारी जिंदगी अमेजिंग क्यों नहीं है हम वो पावर में वो दुनिया में creating and living and doing what we really want so we are just going to start reading and then dwell into that तो कल हमने देखा कि विदाउट दिस पावर अर्थ इज द टूम यही पावर है विच इज द कॉज ऑफ ऑल क्रिएशन ऑल अस ऑल सेल्स ऑल ऑर्गेनिज्म ऑल गैलेक्सीज इन्वेंशंस एवरीथिंग एंड जब वो प्यार का प्रेजेंस होता है तब चीजें खिलती है और जब वो प्रेजेंस नहीं होता है तब एवरीथिंग स्टार्ट्स डेडनिंग वेदर इट इज अर्थ वेदर इट इज आवर लाइफ वेदर इट इज एनी एरिया ऑफ आवर लाइफ तो ये वही फोर्स है जो हमें चला रहा है Kenshi, we can start reading. Can you all see the book? Yeah. Yeah, great. Good morning, everyone. So yesterday I was reading, I think I was clear, right? Like audible? Yeah. Great. So we'll continue. Okay. Love is the force that moves you. Everything you want to be, do, or have comes from love. Without love, you wouldn't move. There would be no positive force to propel you to get up in the morning, to work, to play, dance, talk, learn, listen to music, or do anything at all. You'd be like a stone statue. It is the positive force of love that inspires you to move and gives you the desire to be, do, or have anything. The positive force of love can create anything good, increases the good things, and change anything negative in your life. You have the power over your health, your wealth, your career, your relationships, and every area of your life. And that power, love, is inside you. You can read, yeah.
But if you have the power over your life and that power is inside you, why isn't your life amazing? Why isn't every area of your life magnificent? Why don't you have everything you want? Why haven't you been able to do everything you want to do? Why aren't you filled with joy every day? The answer is because you have a choice. You have a choice whether to love and harness the positive force or not. And whether you realize it or not, every day of your life, every moment of your life, you have been making this choice. Without exception, every single time you experience something good in your life, you loved and harnessed love's positive force. And every single time you experience something not good, you didn't love, and the result was negativity. Love is the cause of all the good things in your life. And a lack of love is the cause of all the negative things and all the pain and suffering. Tragically, a lack of knowledge and understanding of the power of love is clear in people's lives across the planet today and in the entire history of humanity. Love is the most powerful and still most unknown energy in the world. सो कल से आज में अगेन हम वही सुन रहे हैं कि हम सब अच्छी लाइफ जी सकते हैं, जो चाहिए क्रिएट कर सकते हैं, जहां चाहिए जा सकते हैं, जो चाहिए बन सकते हैं। पर नहीं है, राइट? कुछ एरियाज में है, कुछ एरियाज खिल रहे हैं और कुछ नहीं खिल रहे हैं। तो वो क्या है विच डिफरेंशिएट्स अस फ्रॉम लव? यहाँ पे लव है, यहाँ पे हम है। तो क्या कनेक्टिंग फोर्स है हमारा? सो इट इज आवर फ्री विल। ये पावर इतना अनकंडीशनल है, ये पावर इतना काइंड है, ये पावर इतना गिविंग है, ये पावर इतना ब्यूटीफुल टीचर है दैट जो हमने वो जीनी की मूवी देखी है, राइट? लाइक जस्ट यू तुम अलादीन का चिराग रब करो एंड जीनी इज कमिंग। द ओनली डिफरेंस बिटवीन दैट एंड आवर लाइफ इज उसको 3 विशेस मिली थी। हमें हर मोमेंट एक विश है, हम हर मोमेंट एक विश मांग सकते हैं और वो चीज पूरी होगी और पूरी होती है। और ये सर्वेंट इतना परफेक्ट है, ये सर्वेंट इतना पावरफुल है, ये सर्वेंट इतना ब्यूटीफुल है कि समटाइम्स कोई जन अगर हमारे साथ काम करता है तो बस हमारी नजर में उसको पता चल जाता है क्या करना है। हम बस नजर घुमाए वो काम हो जाता है, या कुछ चीजें हमारे पहले हो जाती है। सो दिस इज फोकस्ड ऑन आप क्या सोच रहे हो, आप कहाँ देख रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो। वो आपका हर एक कमांड लेता है और उसको पूरा करता है। आपने एक भी चीज सोची, वो उसको बस आपकी तरफ कैसे लाए उसमें वो लग जाता है। और आप जो बोलो, आप बोलो सब अच्छा है तो वो सब और अच्छा 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 करके आपकी लाइफ भर देगा। अगर आप बोलो नहीं गुस्सा आ रहा है, तो उसको लगता है आपको गुस्सा चाहिए, तो वो गुस्सा 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 देके आपकी जिंदगी भर देगा। आप बोलो इसके लिए कुछ खराब हो, तो वो और खराब 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 करके भर देगा। आप बोलो इसके लिए कुछ अच्छा हो, तो वो करके भर देगा। जो आप बोलो, जहां आप देखो, जो आप सोचो, उससे आपकी जिंदगी, ये आपका सर्वेंट हर मोमेंट भर रहा है। एंड वो आपको ज्ञान देने नहीं आएगा, ओ बी पॉजिटिव, ओ बी नाइस, नहीं। जो आप बोलो, यू आर द मास्टर एंड दिस फोर्स इज योर सर्वेंट। सो यस, हम सब कर सकते हैं जो हमें चाहिए। एवरीथिंग वी वांट टू बी, डू और हैव, वी कैन बी। जो हमें बनना है हम बन सकते हैं, जो हमें करना है हम कर सकते हैं, जो जहां जाना है जा सकते हैं। और वो लव से कनेक्टेड है। एंड ऑफ कोर्स जहाँ पे एरियाज में हम स्टक है, हम मूव नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वहां पे हमने चॉइस किया है कि इनफ लव नहीं डालने का, यू नो। और जब वहां पे इनफ लव नहीं है, वो चीज में इतना फ्यूल ही नहीं है। हमारे पास शायद गाड़ी है, पर गाड़ी कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, पर विदाउट फ्यूल ना गाड़ी चलेगी, ना प्लेन उड़ेगा, ना रॉकेट उड़ेगा, ना कुछ होगा, राइट? सो हमारे पास व्हीकल है, पर उसका जो फ्यूल है वो ये फ्यूल है। तो जैसे हम गाड़ी सोचते हैं कि एक गाड़ी है, उसमें एक फ्यूल है और उसमें एक जीपीएस है। तो जो फ्यूल है वो लव है, व्हीकल हम है, और जो जीपीएस है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ पहुंचना है, वो हमारे थॉट्स और फीलिंग्स है। जहां हम देखेंगे, जहां हम ध्यान देंगे, वेर एवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, वो एरिया आपके लाइफ में से वो भर देगा। मतलब
इट्स लाइक बस आपने ये पर्दा देखा तो आपको पर्दे से भर देगा, आपने प्यार देखा तो आपको प्यार से भर देगा, क्योंकि आप जो सोचोगे उसको लगता है आपको वो चाहिए। सो इस सॉफ्टवेयर में सिर्फ एक ग्लिच है कि अगर आपको लगता है किसी और के लिए वो चाहिए तो वो उसको तो देगा नहीं देगा, बिकॉज वो आपका सर्वेंट है, वो आपको दे देगा। तो अगर इसीलिए हमें बचपन से सिखाया गया है सबका अच्छा सोचो, सबका ये करो, बिकॉज एवरी डे एवरी टाइम दे आर जस्ट ट्राइंग टू टेल अस मोर एंड मोर अबाउट दिस फोर्स ऑफ लव। तो यस, दिस इज द फोर्स दैट इज अवर फ्यूल ऑफ लाइफ, और ये फ्यूल होता है तभी ही हम लाइफ में हर चीज कर सकते हैं। अगर ये फोर्स नहीं होता तो बस हम एक पत्थर के स्टैचू ही बन जाते। और इट इज द फोर्स ऑफ लाइफ दैट इंस्पायर्स यू टू मूव एंड गिव यू द डिजायर टू बी, डू एंड हैव एनीथिंग। जो हमारे डिजायर्स है वो भी इन अ वे ये एक फोर्स, ये लव के फोर्स का ही एक स्वरूप है कि just for the love of it, okay, I would love to dance, I would love to cook, I would love to give back to people, I would love to create something, I would love to fill my health with beautiful things, fill my life with beautiful things. So yes, it is this force that is cause of all good. And if you have the power over your life and that power is inside you, why isn't your life amazing? And why isn't every area of our life magnificent? Because we have a choice. Because we are constantly choosing things we don't want. We are unknowingly choosing the life and areas of life that we don't want. And the force of life, force of love doesn't discriminate. वो आप जो सोचोगे वो आपको देगा। तो ये जो चॉइस है वो हमारी चॉइस है। तो हमारे लाइफ में जो अच्छा हो रहा है वो भी हमने चूज किया है, और जो अच्छा नहीं हो रहा है वो भी हमने चूज किया है। वो डिफॉल्ट में रहता था, वो एक ऑटोमेटिक रेपिटेटिव मशीन की तरह काम करता था, तो हमें उसमें वो पावर फील नहीं होता था, हमें उसमें वो एक्सेस फील नहीं होता था। बट एज वी स्टार्ट बिकमिंग अवेयर, that whole world open up for us, the whole possibilities open up for us. Now there is more space to create what we really want in our life. So yes, हमारे लाइफ में जहां भी हमने कुछ भी अच्छा एक्सपीरियंस किया है उसमें सिर्फ लव है that brings it alive, that makes it positive, that makes it fun. और जो भी एरियाज लाइफ में वर्क नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हम उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो डालना भूल गए हैं, जो मेन फ्यूल है वो डालना भूल गए हैं, तो फ्यूल के बिना गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं, वहां हम अटके ही रहेंगे। तो लव इज द कॉज ऑफ हर ऑल गुड थिंग्स इन लाइफ, एंड just it's tragically a lack of knowledge and understanding of the power of love. उसके वजह से humanity, planet, हमारे history is where we are. हर जन इसको accidentally tap करे जा रहा है, but consciously we haven't gotten there, and this is our opportunity to do that, and this is our answer कि क्यों चीजें कहाँ work नहीं कर रही दुनिया में या हमारे साथ। So this is the power, बस वहां पे ये love की ingredient की कमी है। So even though most powerful, it is the most unknown energy and force in the world. कि इसको जिसने जाना वो पहुंच गया, और जो नहीं जान पाया वो भटक रहा है। So now we are receiving the knowledge of one and only power of all the good things in life, and we'll be able to use it to change our entire life. So first, we must understand exactly how love works. So now let's just dive into how love works. We'll start reading from the law of love. The law of love. The universe is governed by natural laws. We can fly in an airplane because aviation works in harmony with natural laws. The laws of physics didn't change for us to be able to fly, but we found a way to work in accordance with the natural laws, and by doing so, we can fly. Just as laws of physics govern aviation, electricity, and gravity, there is a law that governs love. To harness the positive force of love and change your life, you must understand its law, the most powerful law in the universe, the law of attraction. From the greatest to the smallest, the law of attraction is what holds every star in the universe and forms every atom and molecule. The force of attraction of the sun holds the planets in our solar system, keeping them from hurtling into space. The force of attraction in gravity holds you and every person, animal, plant, and mineral on earth.
The force of attraction can be seen in all of nature, from a flower attracting bees or a seed attracting nutrients from the soil to every living creature being attracted to its own species. The force of attraction operates through all the animals on the earth, fish in the sea, birds in the sky, leading them to multiply and form herds, schools, and flocks. The force of attraction holds together the cells of your body, the materials of your house, and the furniture you sit on, and it holds your car to the road, the water in your glass. Every object you use is held together by force of attraction. Yes. So, जैसे हमने देखा power. What is power? What they are leading us to? Love. Love is the greatest power in the whole of universe. And your choice in your life is greater than that power. And let's discover this most unknown force, that is the law of love. ये लव होता क्या है, ये प्यार है क्या? जो हमने किया, जो हमने समझा, ये वो है कि ये शायद कुछ और है, कुछ अलग है. सो जैसे कि हमने द बिगिनिंग ऑफ चैप्टर दे आर सेइंग कि जैसे न्यूटन ने डिस्कवर किया था कि ग्रेविटी, एप्पल गिरने पे, एप्पल तो हमेशा गिरता था, बस ध्यान हमारा तभी गया और देन वी स्टार्टेड dwelling इनटू इट. सेम जैसे कि ये यूनिवर्स है, वो नेचुरल लॉज पे काम करता है, इतनी विशाल चीज है. सो हर चीज इज कॉन्शियस, हर चीज इज कैलकुलेटेड, हर चीज इज एज पर द लॉ. एंड देन देर आर नो एक्सेप्शंस फॉर नो बडी इंक्लूडिंग लाइक जो हम भगवान समझते हैं, जो हम इंसान समझते हैं, जो हम कुछ भी समझते हैं, हर जन के लिए ये लॉज काम करते हैं. यू नो जैसे कि राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बनाया, तो इस लाइक अच्छा यूनिवर्स ने बोला चलो मैं आपको शक्ति देता हूँ, आप उड़ पाओगे? नहीं. उन्होंने लॉज समझे फिजिक्स के, दे अंडरस्टूड हाउ लॉ वर्क्स, एंड देन दे मेड समथिंग दैट फॉलोज दोज लॉज एंड देन क्रिएट व्हाट दे वांटेड टू क्रिएट. तो उन्होंने वो नेचुरल लॉज को समझा और फिर एक एरोप्लेन क्रिएट किया. द फिजिक्स डिडंट चेंज फॉर अस टू फ्लाई, बट हमने उसके साथ काम करने का एक वे ढूंढ लिया, एंड दैट्स व्हाई इतनी बड़ी चीज हो पाई और इतना ग्राउंड ब्रेकिंग एक इन्वेंशन हो पाया. सो एक ऐसा फोर्स है जो हर एक सेल को जोड़े रख रहा है, एंड ओनली वी आर ऑल कंपाइलेशन ऑफ सेल्स, राइट? तो वो सेल्स को जोड़े रख रहा है, एंड इट इज जस्ट कीपिंग अस ह्यूमंस. So same way, the probably this law of attraction is universal, and it is also keeping the galaxies afloat. It is holding the sun together. It is holding the planet together. It is like sub planets. इतने massive planets है, पर they are all keeping their circuitries एक दूसरे में, उन लोग they are not like banging into each other, or like plants बोलो, animals बोलो, इतने मिनरल्स बोलो, हर चीज को जो चला रहा है, इतना लाइक फॉर दिस अर्थ टू वर्क, फॉर द बॉडी टू वर्क, डू वी आर वी इवन अवेयर कितनी चीजें चल रही है? हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टेकन दैट कि वाओ खुद सांस आ रही है, वाओ खुद बॉडी सब चीजें कर रही है, वाओ बॉडी इज लर्निंग टू जस्ट लुक, एवरीथिंग इज जस्ट गिवन टू अस, and what we are doing is probably misusing our choice to sabotage all of that. you know लाइक आज एक प्लांट, एक सीड डाला, उसमें से इतना बड़ा प्लांट आया, उसमें से हजारों सीड आए, उसमें से ऑक्सीजन आया. क्या चल रहा है? जस्ट लुक अराउंड, व्हाट इज रियली हैपनिंग इन अस, विद इन अस, अराउंड अस. इजंट इट मिराकल? इससे बड़ा और मिराकल चाहिए ही क्या? यू नो तो यस, ये एक फोर्स है जो हर चीज को चला रहा है, जो हर सेकंड मिराकल्स कर रहा है, जो आपकी बॉडीज को जोड़े रखा है. एंड ऑफ कोर्स जो चीजें हम यूज कर रहे हैं वो सब भी यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से. हम बोलते हैं ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, कि योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब, कि तुम जैसे हो तुम्हारे साथ ये चीजें होती है. ये सब हमारी वोकैबुलरी में है, हमारे चीजों में है. अयो कर्मा, दिस सब तुमने किया इसीलिए मिला. बट व्हाट रियली इज इट? जब हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आए कि अच्छा मेरी लाइफ मेरी वजह से है, तो नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे चार्ट्स में लिखा है, ये तो मेरे साथ होना ही था, ये तो मंगल है, बुध है, गुरु है, पता नहीं क्या क्या है. सो यस, दिस इज हम है, हमारी चॉइस है, इसीलिए जो भी है सो है. तो ये I'll continue. Attraction is the force that draws people to other people. It draws people to form cities and nations, groups,
clubs, and societies where they share common interests. It is the force that pulls one person to science and another to cooking. It pulls people to various sports or to different styles of music, to certain animals and pets. Attraction is the force that draws you to your favorite things and places, and it's the force that draws you to your friends and the people you love. So yes, your vibe attracts your tribe. आपके अंदर से नेचुरली जो आप हो, आपके सामने वैसी चीजें, वैसे सर्कमस्टांसेस, वैसे लोग, वैसे शहर, आप वैसे शहर में रहोगे जैसे आप हो, आप वैसे देश में रहोगे जैसे आप हो, आप ऐसे क्लब्स में रहोगे जैसे आप हो, आपके फ्रेंड्स भी वैसे ही होंगे जैसे आप हो. So that's how probably we've seen, there are so many like-minded people coming together and also doing some magnificent things. And of course destructive things, because this love is unconditional. Tum jo chaho, because we are the boss, jo chaho, it will just provide. So the reason behind इतने बड़े बड़े शहर बने हैं, इतने देश बने हैं, इतने क्लब्स और ग्रुप्स एंड सोसाइटीज बने हैं, बिकॉज कॉमन इंटरेस्ट वाले लोग साथ में जुड़ते हैं. वन ऑफ द रीजन वी आर डूइंग दिस बुक रीडिंग टुगेदर, there is a common interest, there's a common link, there's a common frequency that is connecting all of us. But one of the most important things said in this paragraph is कि so many times हम इसमें खो जाते हैं कि ये कर रही है ऐसा तो मुझे करना चाहिए क्या, यार इसने ऐसा किया तो मैं भी वो करूं, अरे इसको इससे सक्सेस मिली तो मैं भी वो करूं. नहीं, सो दिस फोर्स इज सेइंग कि किसी को शायद कुकिंग में मजा आ रहा है, किसी को क्लीनिंग में मजा आता है. वी नो द इनफ कुक्स जिसने कुक कर करके या अपनी फैमिली की लाइफ ट्रांसफॉर्म की है, या खुद की लाइफ ट्रांसफॉर्म की है, या देश में और दुनिया में नाम कमाया है. सेम किसी ने स्यूइंग कर करके, किसी ने क्लीनिंग कर करके, देयर आर वन ऑफ द बेस्ट क्लीनर्स एंड लाइक ऑर्गेनाइजर्स इन द वर्ल्ड. तो अगर सो दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अगेन सेइंग, आप खुद में देखो कि आपके अंदर वो क्या है जहां पे आपको नेचुरली वो चीज मजा आती है. मे बी आई लव दिस बुक रीडिंग versus if somebody else loves driving and I'm like कल से बस मैं भी ड्राइव करके I will express, no, I'll bang the car. So हर जन so Kanchu is like, I've tried hard enough for that. So yes, Kanchu, that's not my Let's love. not say bang the car. That's not my love is all I'm saying. Yeah. So yes, जो हम है वहां पे नेचुरली वी विल बी ड्रॉन टू इट. एंड आज हम खुद से इंक्वायर करेंगे कि क्या ऐसी चीज है जहाँ पे विच आई नेचुरली लव डूइंग, विच इफ नोबडी इज अपलॉडिंग मी फॉर, विच नोबडी इज पेइंग मी फॉर, फिर भी मैं करूंगी. सो आज ये मैं अभी ही असाइनमेंट सबको दे देती हूँ कि हर स्टेप पे, हर वे पे आज अलार्म्स रखो, कीप 5 अलार्म्स अ डे. एंड आप जो भी कर रहे हो जस्ट खुद को याद करो, दिस इज माई फ्री विल, दिस इज माई चॉइस. ओके, दिस इज, मैं ये चूज कर रही हूँ ये करना, मैं ये चूज कर रही हूँ ये फील करना, और उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है. मैं ये चूज कर रही हूँ देखना, और वो चीज मेरे लाइफ में मल्टीप्लाई होगी. सो 5 times a day minimum remind yourself, it is my free will and I am choosing to focus on this. It will really help if we keep alarms to begin with. And second thing we ask is, what are the things that naturally invoke love in us? Because जब हम ये जर्नी में है, ये जर्नी इमेंसली पावरफुल होगी जब हम अवेयर होते जाएंगे वो कौन सी चीजें हैं जो नेचुरली हमें लविंग बनाती है, हमें लव इन्वोक करती है. So yes, so attraction is the force that draws you to your favorite things and places. तो नेक्स्ट टाइम कहीं भी आपका दिल करे ना ये करना है, बस उसको मारना मत. उसको उसको कनेक्ट करना, उसको थैंक यू बोलना, उसको बोलना थैंक यू फॉर गाइडिंग मी, थैंक यू फॉर सजेस्टिंग मी, थैंक यू फॉर शोइंग मी, यू नो एंड इट इज योर फ्री विल टू चूज इट और नॉट, क्योंकि वो आप पे इम्पोज नहीं कर सकता है. पर जब आप उसको फॉलो करते जाओगे ना तो एक नई दुनिया खुलेगी, एक नई पॉसिबिलिटी खुलेगी, एक अपने अंदर से एक लाइट आएगी. सो दिस इज एन इन्विटेशन टू फॉलो योर highest excitement. One of the person I would often listen to, um,
he would say that, follow your excitement, follow your excitement, follow your excitement. And मेरे लाइफ में आई कीप टॉकिंग अबाउट अ फेज जहाँ पे लाइक जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी, तब मैंने कोई कॉलेज ज्वाइन की थी। एंड तब मुझे लगता था यार मेरे को तो पता ही नहीं है मुझे साइंस कॉमर्स आर्ट्स लेना है। तो इधर माय फ्री विल वुड हैव बीन क्या अनक्लियर है यार, तुझे कुछ आता ही नहीं है ये वो 12वीं तक। या बट एक्चुअली समथिंग इन मी सेड यार काश सब साइंस कॉमर्स आर्ट्स सब मिक्स होता यार, मिक्स होता मिलता तो कितना मजा आता। एंड आई हैड ऑलरेडी ज्वाइन द कॉलेज, बट ये सोचने के लिटरली 15-20 दिन बाद, लाइक थिंग्स हैपन एंड आई एंडेड अप विजिटिंग अ कैंपस जो साइंस कॉमर्स आर्ट्स म्यूजिक डांस सब साथ में ऑफर कर रहा है। और तब तक मैंने कभी सुना भी नहीं था ऐसी कोई चीज हो सकती है, एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल कैंपस यू कैन एवर इमेजिन। मतलब वो कैंपस सुंदर है, ग्रीन है, आइसोलेटेड है, माउंटेन्स के बीच में है, बेस्ट खाना है। Imagine your 10 days vacation becoming into 4 years. And that was my journey of college was. मेरी already college fix थी। मैं अगर खुद को लिमिट कर देती कि मैंने सिर्फ वो थॉट को सोचा और उसको 2 सेकंड का प्यार दिया और उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। फिर 4 साल जब वो कॉलेज में थी, 2 साल आई फुल्ली गेव इन टू चिलिंग, ईटिंग, वॉचिंग मूवीज, यू नो लाइक इंडल्जिंग, हैविंग फ्रेंड्स। एंड सडनली आई एम लाइक बस यार बोर हो गए, अब कुछ मीनिंगफुल चाहिए। सडनली आई फाइंड द मेडिटेशन कम्युनिटी, दे आर ऑल इनर वर्क, साइलेंस, ये वो ये। सो आई एम लाइक वाव यार। एंड देन मेडिटेशन कम्युनिटी में आई एम लाइक नहीं यार कुछ सेल्फ एक्सप्लोरेशन चाहिए। सो अगेन आई एम लाइक यार गैप ईयर, कुछ ब्रेक मिल जाए मुझे। फॉरेन तो नहीं जाना, मुझे पढ़ाई तो नहीं करनी, मुझे पैसे तो नहीं कमाने। अगेन थिंग्स हैपन एंड लाइक आई फाइंड अनदर स्पेस अगेन अनहर्ड ऑफ, सोच भी नहीं सकते ऐसा कैंपस मिला, ऐसी जगह मिली। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड स्वराज व्हिच promises you no degree, no certificate, there is no classroom, समथिंग अनहर्ड ऑफ। बट जब हम हमारे दिल से आई हुई कोई चीज को थोड़ा भी अटेंशन देते हैं, उसको थोड़ा भी प्रेजेंस देते हैं, that has the power to transform our lives. One of the reasons, so this servant will keep giving you clues if you catch them. You know, this force will keep reminding you कि hey, your path is this. I think मैंने I don't know गीता में पढ़ा था या कहीं तो ये एक लाइन पढ़ी थी, and it has really helped me कि तुम किसी और का धर्म बेस्ट भी फॉलो कर लो एंड तुम्हें सक्सेस मिला है, बट यू आर अ लाइक इट्स अ फेल्ड लाइफ। बट अगर तुम खुद का जो स्वधर्म है, जो तुम्हारे अंदर से एक धर्म निकलता है, उसको फॉलो करते करते आप हार भी जाओ, थक भी जाओ, बट इट्स अ सक्सेसफुल लाइफ। तो it is never about doing what somebody else is doing. It is never about competing with the outside world. It is always about finding मेरे लिए इस जगत में contribute करने के लिए क्या है, and how I can do that the very best way possible. And जो मैं कर सकती हूँ वो दृष्टि नहीं कर सकती, जो दृष्टि कर सकती है वो मैं नहीं कर सकती। So it is very important I fully follow what really brings me alive. Drishti fully follows what brings her alive. And all of us follow what brings us alive. और उसके लिए हमारी दृष्टि बहिर्मुखी नहीं पर अंतर्मुखी, वी हैव टू लुक विद इन टू फाइंड दैट। बाहर कोई पोस्टर नहीं आएंगे, बाहर कोई रील्स नहीं आएगी। उसके लिए हमें अंदर खुद के साथ बैठना पड़ेगा, वो फोर्स के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, उसको पूछना पड़ेगा और हर मिनट पूछना पड़ेगा कि व्हाट इज इट दैट ब्रिंग्स यू अलाइव। उसको ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज जहां भी ध्यान दोगे वो एरिया, वो पावर भर देगा, लाइक उसको एकदम ही उसमें एक बहार ला देगा। सो प्लीज टुडे रिमाइंड योर सेल्फ, हर चीज जो तुमने क्रिएट की है वो तुम्हारी फ्री विल से है, और अभी जहां अटेंशन दे रहे हो वो तुम्हारी फ्री विल से है। एंड जहां अटेंशन दोगे वो ग्रो होगा। तो कहाँ देना है, व्हाट इज इट दैट ब्रिंग्स यू अलाइव। या कुछ The attractive force of love. So, what is the force of attraction? The force of attraction is the force of love. Attraction is love. When you feel an attraction to your favorite food, you're feeling love for that food. Without attraction, you wouldn't feel anything. All food would be same to you. You wouldn't know what you love or what you don't love because you wouldn't be attracted to anything. You wouldn't be attracted to another person, a particular city, house, car, sport, job, music, clothes,
or anything, because it's through the force of attraction that you feel love. The law of attraction or the law of love, they are one and the same. So we started with power, then we came to the law of love, then we are coming to the law of attraction, and बस they are all used somewhere interchangeably, जो manifestation भी बोलते हैं. And manifestation के लिए भी हम वही ध्यान रखें कि oh I manifested this for me, but no, hello, you manifested whole of your life. ये लॉ ऐसा नहीं है कि चलो ये एरिया मैनिफेस्ट आप करो और ये एरिया नहीं करो. जो भी आपके लाइफ में है, हर चीज, हर एक चीज, आप जो जैसे हो, रिश्ते जैसे है, हेल्थ जैसे है, हर एरिया आपने मटेरियलाइज किया है, हर एरिया आपने अपने लाइफ में अट्रैक्ट किया है. कुछ कॉन्शियसली किया तो आप उसको मैनिफेस्टेशन बोलो, कुछ अनकॉन्शियसली किया तो फिर उसको आप बुरी किस्मत, कलयुग, ये वो. नहीं, हर चीज आपने की है और हर चीज आप कॉन्स्टेंटली कर रहे हो, हर चीज हम कर रहे हैं. एंड हाउ डू वी डू दैट? बाय जो हम है वो बाहर दे के वही चीज वापस वापस हमारे अंदर आएगी. वी विल ड्वेल मोर इनटू इट. बट यस, के लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलो, लॉ ऑफ लव बोलो, पावर बोलो, हर चीज वही है. And that's why, like pani puri, I love the most, but my brother doesn't, you know. Somebody else loves probably like all the non-veg food, and I don't. So it doesn't mean वो food में कुछ है. It means मेरा और उसका कुछ connection हो रहा है. That is why I am drawn to it. So that's why we are all attracted to, you know, the different kinds of music, different kinds of countries, different kind of food. And this is again our invitation. Like one thing that changed my life many years back was, हमें एक session, like one of the sessions I attended was कि it started with a very, very heated debate, you know, because I was partially vegan then and I was so passionate about veganism and I will judge all the people who are non-veg, and ये सब एक strong phase था life का. And then, you know, I'm like, नहीं, ये वो दुनिया बचानी है and all that. And I remember, you know, being part of this session, Man Ke Khel, and what I really got present to is एक दुनिया है ही नहीं, एक पर्सपेक्टिव है ही नहीं. हर जन को हर कोने से ये दुनिया अलग लगती है, यू नो, और हर पॉइंट वैलिड है, हर चीज वैलिड है, और देर इज ओनली वन ट्रूथ. एंड वो ट्रूथ हमें डिस्कवर करना है. बाकी सब पर्सपेक्टिव्स है, बाकी सब कंडीशनिंग है, बाकी सब लाइक यू नो जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू है. सो अगर हम ये भी समझ जाए कि हर जन को, जैसे कि हमने ये स्टोरी सुनी है, एक बहुत विशाल हाथी है, लाइक यू नो, एंड एक जन को उसके सूंड पे रख दिया, एक जन को उसकी पूंछ दे दी, सबकी आईज क्लोज्ड है, एक को सूंड पे दे दिया, एक को पूंछ दे दी, एक को पैर दिया, एक को हाथी के ऊपर बिठा दिया, एक को हाथी के नीचे बिठा दिया, ना अभी बोलो हाथी डिस्क्राइब करो, यू नो. तो एक जन बोलेगा अरे कुछ पतला हैरी चीज है, एक जन बोलेगा अरे कुछ यू नो मुड़ती हुई चीज है, एक जन बोलेगा अरे ये तो माउंटेन है, एक जन कुछ और बोलेगा, एक जन बोलेगा अरे कुछ हार्ड है. यू नो, दे आर ऑल सेइंग देयर ट्रूथ, यू नो. और मैं उससे लड़ती जाऊं, अरे पागल है क्या, पतला है क्या हाथी, खंबा है क्या हाथी. नो, दैट इज व्हाट दे आर एक्सप्रेसिंग, दे आर एक्सपीरियंसिंग, ये उनका सच है. सो अगर हम अवेयर हो जाए कि हर जन, देर इज वन लाइफ बट देर आर लाइक 8 बिलियन रियलिटीज. जितने लोग हैं इस दुनिया में, उन सबको ये दुनिया अलग दिखती है. वो जहाँ पे है, वो जैसे है, वो जो लेंसेज में है, वो लेंसेज में दुनिया दिखती है. तो अगर कल से इफ वी कैन ऑल्सो जस्ट ड्रॉप दैट कि नहीं तू ये समझ, नहीं ये सही है, नहीं ये ऐसा ही है, to any time a conflict arise, any time a different point of view arise, can we just take a breath and can we choose, can we use our free will to choose and acknowledge कि हाँ, ये अलग point of view होना ही है, जितने लोग हैं इतने point of view है, and I acknowledge and allow your point of view. I acknowledge and accept your point of view and all are valid. बस मुझे मेरे point of view पे ध्यान देना है और उसमें जाना है. अगर मैं उससे लड़ने बैठूं तो like you know what will multiply is more लड़ाई. So it's an invitation to be more inclusive. और जब हम इंक्लूसिव होंगे, जब वो हाथी के 4 6 8 पार्ट्स वाले अगर साथ में आ पाए, तो शायद उन लोग फिगर कर पाएंगे कि ये हाथी क्या है. बट एक जन पूंछ को पकड़ के ही बैठेगा, एक सूंड को पकड़ के ही बैठेगा, दे विल नेवर नो, यू नो. सो एक वे है कि आप इतना डिस्टेंस क्रिएट करो चीजों से कि यू कैन प्रोबेबली सी देम इन द दिस थिंग.
or you accept all parts and probably the whole will come together. That is again another free will. But it's an invitation to accept all and validate all, कि हर चीज, अगर the force of love discriminate नहीं कर रहा है and अगर हम उसके अंश है, तो मे बी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है बिकॉज हम कॉन्स्टेंटली डिस्क्रिमिनेट करने बैठे हैं, ये सही है, ये गलत है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे, नो, देयर आर नो रूल्स, यू नो सो इट्स जस्ट अबाउट ट्यूनिंग इनटू द फोर्स एंड गोइंग ऑल अबाउट इट. सो यस, हमारे जो शहर है, हमारे आजू बाजू के लोग हैं, ये स्पोर्ट्स है, म्यूजिक, हर चीज इज द रिजल्ट ऑफ दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलो और लॉ ऑफ लव बोलो, बिकॉज बोथ आर जस्ट द सेम. The law of attraction is the law of love, and it is the all-powerful law that keeps everything in harmony, from countless galaxies to atoms. It is operating in everything and through everything in the universe. And it is the law that is operating in your life. In universal terms, the law of attraction says, like attracts like. What that means in simple terms for your life is, what you give out, you receive back. Whatever you give out in life is what you receive back in life. What you give by the law of attraction is exactly what you attract back to yourself. To every action, there is an equal and opposite reaction. Yeah. So हम चलते फिरते वी आर यूजिंग दिस, कि हाँ, हम जैसे हैं वैसे लोग मिलते हैं, हम जैसे हैं वैसे फ्रेंड्स बनते हैं. बट दिस इज अ चांस फॉर डीपर दिस थिंग, कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो है जो आप जैसे हो वैसी वैसी चीजें आपके पास लेते आएगा. तो अगर हमें दुनिया बदलनी है, हमारे आजू बाजू की चीजें बदलनी है, हमारे आजू बाजू के सर्कमस्टेंसेस बदलने हैं, अगर आप जाके इसको बदलने जाओगे, उसको बदलने जाओगे, उसको बदलने जाओगे, तो वो 10 लोग आके आपको बदलने आएंगे, and it will be just one big mess. So simply, आप जो हो वो आपके आजू बाजू दिखेगा, वो दुनिया में दिखेगा. So simply change yourself and the world will change. ये हमने सुना था कि earlier I was something and I wanted to change the world and then I became wise and I changed myself. और गांधी जी is also like, the reason he created such a monumental success in doing what he did is because he's like, be the change you wish to see in the world. आप खुद में वो चेंज लाओ, वर्ल्ड विल रिफ्लेक्ट दैट, वर्ल्ड वो चीज रिफ्लेक्ट करेगा, बिकॉज तुम जैसे हो वही चीजें आएगी. और ये फोर्स इतना पावरफुल है कि हर एक सेल तुम्हारा है, तुम्हारे हर एक एटम है, उसको जोड़ के रख रहा है, और यही चीज गैलेक्सीज को जोड़ के रख रहा है. तो उसके लिए छोटा या बड़ा कुछ नहीं है, उसके लिए हर चीज सेम है. इट इज ऑपरेटिंग इन एवरीथिंग एंड थ्रू एवरीथिंग इन द यूनिवर्स. ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इस लॉ के परे है. लाइफ में हर चीज इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू लॉ. देर आर जीरो एक्सीडेंट्स इन लाइफ. इवन द सो कॉल्ड एक्सीडेंट्स वी सी आउट आर नॉट एक्सीडेंट्स, दे आर ऑल हैपनिंग अकॉर्डिंग टू लॉ. तुम्हारे सामने से कोई जा रहा है, तुम्हारे बाजू में कोई रह रहा है, द पीपल क्रॉसिंग द स्ट्रीट, that is, none of that is accident. It is all somewhere a reflection of your frequency, your attractive force. एंड हर चीज से ये लॉ खुद को एक्सप्रेस कर रहा है. सो हर जन एक मिरर है ऑफ दैट फोर्स. हमें वी हैव हर्ड फ्रॉम बचपन, सब में भगवान देखो, हर चीज में भगवान देखो. इंडिया में देर इज दिस प्रेवलेंट दिस थिंग कि हम हर चीज को ऐसे करते हैं, हर. सो व्हाट रियली इज द हिडन मैसेज बिहाइंड इट, कि एवरीथिंग इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट फोर्स. व्हेन वी डू नमस्कार ऑल्सो, what is namaskar? That sacred part in me bows down to the sacred part in you. ये जो पावर है, जो सृष्टि का निर्माता है, वो मुझ में भी है, वो तुम में भी है. and when I do namaskar, I acknowledge both of that. ये मुझ में भी है और वो probably ISIS soldiers में भी है, वो मुझ में भी है और वो all animals, forms, foods, हर चीज में है. So that's why in India this is everything, right? Because we recognize knowingly, unknowingly, and in every culture that is expressed differently but same thing. So yes, हर चीज like attracts like. तुम जो हो तुम्हारे पास वो आएगा. So simply again, जो हम कर्मा बोल रहे हैं, जो हम sometimes हम लाइफ को, अरे ये तो मेरी किस्मत है, अरे ये तो मेरा कर्मा है करके छोड़ दे रहे हैं. नो, ये आपका एम्पावरिंग पॉइंट है. ये आपका दिस इज द फोर्स दैट रन्स योर लाइफ.
कि जो आप दे रहे हो आपको वही मिल रहा है, जो आप कर रहे हो आपके साथ वही हो रहा है। वट एवर यू गिव आउट इज वॉट यू रिसीव बैक, और वही लॉ है। एंड इसीलिए वही चीज वैसे काम करती है। सो अगेन न्यूटन, हु इज द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट, इज सेइंग every action there's an equal and opposite reaction. So every act of giving it's like a boomerang, जैसे कि है कि ये मैंने दिया और वही चीज घूम के मेरे पास आई और मिला। जैसे कि हमने ये उंगली करना, मैंने बोला तू गलत, पर वो वापस मेरे पास आया और शायद 4 जन आके मुझे बोलेंगे मैं गलत। सो हर चीज जो तुम देते हो वो तुम्हें मिलता है। दिस विल कीप कमिंग अप, सो वी विल डू dwell more and more into this. So yes. Every action of giving creates an opposite action of receiving, and what you receive is always equal to what you have given. Whatever you give out in life must return to you. It is the physics and the mathematics of the universe. Give positivity and receive back positivity. Give negativity and you receive back negativity. Give positivity and you receive back a life full of positive things. Give negativity and you receive back a life filled with negative things. And how do you give positivity or negativity? Through your thoughts and your feelings. So this is the जवाब for a lot of us कि यार हम तो सब अच्छा कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो इतनी मेहनत की, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। तुम्हें जो मिल रहा है वो तुम्हारा रिफ्लेक्शन है। तुम्हें अगर नहीं समझ रहा है तो वो तुम्हें बता रहा है कि भाई तुम ये हो, तुमने ये दिया है इसीलिए ये मिल रहा है। पर जब तक उसमें हम ओनरशिप नहीं लेंगे, जब तक हम उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे कि हाँ ये मेरा किया हुआ ही है जो मेरे पास आ रहा है, हमें नया करने का पावर नहीं मिलेगा। अगेन बिकॉज द लव इज सो काइंड एंड अनकंडीशनल। वो आप बोलोगे कि मेरे पास मैं तो थक गई, तो वो आपको और थका देगा। मेरे साथ सब बुरा हो रहा है तो वो आपके साथ और बुरा करेगा, बिकॉज आपने बोला। सो इट्स लाइक इट इज नॉट इन एक्शन ओनली, जो ये काम करता है कि मैंने अच्छा किया, बट इट इज थ्रू योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो और आप क्या फील कर रहे हो, वो उसका नेविगेशन सिस्टम है। बिकॉज जहां आपका ध्यान जाएगा, जहां आपका अटेंशन जाएगा और जो आप फील करोगे वो बढ़ेगा। अगर आप 50 जन को खिला रहे हो या 10 जन को खिला रहे हो, पर अगर आप अंदर उनके लिए गुस्सा फील कर रहे हो, तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन देगा वो गुस्सा ही देगा, अच्छी पैकेजिंग में देगा। बिकॉज आपने अच्छी पैकेजिंग में किया ना, तो आपको पैकेजिंग अच्छी मिलेगी पर अंदर गुस्सा मिलेगा। वर्सेस आप यहाँ बैठ के आंख बंद करके आप सबको लव दे रहे हो, तो आपको लव ही मिलेगा। इट इज इन योर थॉट्स एंड फीलिंग्स जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पकड़ता है और आपको वो मल्टीप्लाई करके देता है। सो इन एनी एरिया जहाँ पे आप खुद को पूछ रहे हो ना मेरे साथ चीजें क्यों नहीं बढ़ रही है, बिकॉज वहां पे आपने लव दिया ही नहीं है। वहां पे अनकॉन्शियसली हमने ऐसे थॉट्स और फीलिंग्स दिए हैं जो अच्छे नहीं है। एंड एज आई मेंशन्ड अर्लियर, ये चीज में एक ग्लिच क्या है कि समझो मेरा किसी के साथ झगड़ा हुआ और मैंने उसको बोला यार ये तो पर्सन ही ऐसा है, इसको तो कुछ अक्ल नहीं है, ये है वो है। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कोई और दिखता ही नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किसी और के बारे में समझ ही नहीं है, बिकॉज द लॉ इज सो इंक्लूसिव। उसके लिए सब सेम है, उसके लिए सब एक है। तो जो भी मैंने उसको दिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लगता है मुझे चाहिए तो वो मुझे देगा। तो मैं पागल हूं, मैं खराब हूं, मैं नहीं समझ रही हूँ, तो जो भी हम दूसरों के लिए सोचते हैं कि इसने मेरे साथ गलत किया, बॉस ने ऐसा किया, इसने ऐसा हुआ, वो सब हम खुद के अंदर ला रहे हैं, वो सब हम खुद की लाइफ में ला रहे हैं। एंड दैट्स वाई हमें बोला गया है कि हर जन के लिए लविंग बनो। नॉट बिकॉज उनको कोई डोरमेंट बच्चे चाहिए थे या बहुएं चाहिए थी या पति चाहिए थी, बिकॉज दे न्यू द लव। दे न्यू कि ये करके ही तुम्हारी लाइफ में खुशी आएगी। बट हमने क्या किया, हमने उसका मेकअप कर दिया, नाइस का मेकअप कर दिया, काइंड का मेकअप कर दिया, और अंदर कुछ और चल रहा है। सो जो अंदर चल रहा है दैट काउंट्स। सो इट्स अ सिंपल लॉ, जो दोगे वो मिलेगा, जो दोगे वो मिलेगा। तुम्हारी लाइफ जहां जैसी भी है, बिकॉज आपने वो एरिया में वो दिया है और आपको वही मिलेगा। यस। In any moment, you're giving either positive thoughts or negative thoughts. You're giving either positive feelings or negative feelings. And whether they are positive or negative will determine what you receive back in your life. All the people, circumstances, and events
that make up every moment of your life are being attracted back to you through the thoughts and the feelings you're giving out. Life doesn't just happen to you. You receive everything in your life based on what you have given. Give, and it will be given to you. For by your standard of measure, it will be measured to you in return. Jesus. Jesus. Yeah, सेम थिंग, जो दोगे मिलेगा, जो दोगे मिलेगा, पॉजिटिव दोगे पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव दोगे नेगेटिव मिलेगा। एंड जो भी जन आपके लाइफ में है, सो आज अनदर वन थिंग, आप जहां भी जाओ, बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर फीलिंग, बट खुद को याद कराओ कि ये मैंने क्रिएट किया है, एंड आई कैन ऑल्सो क्रिएट व्हाट आई वांट। दिस, हर एरियाज में जो एरियाज आपके अच्छे चल रहे हैं वहां भी खुद को रिमाइंड कराओ, आई हैव क्रिएटेड दिस एंड आई कैन क्रिएट व्हाट एवर आई वांट। जो एरियाज अच्छे नहीं चल रहे हैं वो भी अच्छे नहीं चल रहे हैं बिकॉज आपने उसमें नेगेटिविटी दी है, बट ऑल्सो ओन इट अप, आई हैव क्रिएटेड दिस एंड आई कैन क्रिएट वट एवर आई वॉन्ट। बस आज पूरा टाइम खुद को ये फ्री विल एंड यू आर द क्रिएटर, यू हैव क्रिएटेड दिस का रिमाइंडर दो। एंड कर्मा इज नॉट रियली जो कुंडली में लिखा है, इट इज वॉट राइट नाउ यू आर थिंकिंग एंड फीलिंग। उस हिसाब से आपके आजू बाजू कौन है, आपके बॉसेस कौन है, आपके स्पाउसेस कौन है, आपके लाइफ में हेल्थ कैसी है, पैसा कैसा है, सक्सेस कैसा है, खुशी कैसी है, वो सब आपके थॉट्स और फीलिंग्स पे डिपेंडेंट है। इवन जीसस इज सेइंग, जो आप दोगे, गिव एंड इट विल बी गिवन टू यू, बाय योर स्टैंडर्ड ऑफ मेजर इट विल बी मेजर्ड टू यू इन रिटर्न। कि तुमने जो क्वालिटी का दिया है वो क्वालिटी की चीज मिलेगी। ओ मैंने इतना दिया, इतना किया, पर तुम्हारी क्वालिटी क्या थी जो तुम्हारे लाइफ में फिलहाल है ना, that has been the quality of what you have given। अगर तुम्हारी लाइफ खिल रही है, नॉट बिकॉज तुमने क्योंकि अच्छी खिलती चीजें दी है, पर तुम्हारी लाइफ सिकुड़ रही है बिकॉज तुमने सिकुड़ती हुई चीजें दी है, सो बस जो तुमने दिया है तुम्हें वही मिल रहा है। एंड it's repetitive, it is same, but it is profound. So we right now can probably pause here and just see what is really coming up for people, and coming up. And today is an invitation to sit and acknowledge all the things that we have created, that we wanted, and all the things जो हमें नहीं भी है, नहीं भी पसंद है, पर वो भी हमने ही create किया है, and acknowledging all the parts। And we can use last 5 minutes for sharing what really is opening up for you, what really is alive for you from knowing this। तुम्हारे क्या, what are you taking back, और how ये आपके लाइफ में कैसे डिफरेंस क्रिएट करेगा। So that is one thing। And also I want to invite Bena Masi Shilpa Gajra। She's my Masi, and as in her introduction she had mentioned कि yes, she is one of my favorite, she is my favorite Masi, because इनको देख के वो एक पॉसिबिलिटी खुलती है। लाइक आई ऑलवेज व्हेन आई डू ऑल दीज कोर्सेज एंड वर्क, आई ऑलवेज विश ये मॉम्स तक पहुंचे, ये मॉम्स उनके लाइफ चेंज करे। एंड लाइक शी हैज बिन दैट एपिटोम ऑफ एग्जाम्पल कि जस्ट विद दैट प्योर विल उन्होंने हर मोमेंट अपनी लाइफ कैसे सुंदर की है, कैसे अपने हर सपनों को छोटे से छोटे, बड़े से बड़े को साकार किया है, हाउ शी हैज चेंज्ड her lives for her children and filled their lives with possibilities and positivity। So I'm inviting her to start this sharing just a little about her journey and what is opening आपके लिए यहाँ पे क्या खुल रहा है, and then this place is open for whoever else like to share, and we are just 5 minutes away from completion। So I'm also saying now कि 10:30 को whoever needs to leave, they have something that they need to attend to, they can, and we thank them for being here and being part of this journey। And now we'll just take sharings whoever wants to or not, and then we end when this ends। Thank you everyone। So yes, Venamasi, Kunal, you can unmute her, ask to unmute। I think so the right it's done, it's done। मेरी एक बड़ी शेयरिंग है कि 3 साल पहले ना मेरा बेटे ने कनाडा के लिए अप्लाई किया था कॉलेज के लिए। तो वो टाइम जो उसका कोर्स था ना, वो टाइम पे था वो कॉलेज में। और उधर कैसा रहता है कि सेकंड अगर उसके दूसरे साल है ना, कभी कभी वो लोग निकाल देते हैं कि वो नहीं रहता है और दूसरा कोर्स आ जाता है उसके बदले, मगर उसको वही कोर्स करने का था।
तो उसने मेरे को बोला करके कि मम्मी अगर अगले साल ये साल मेरे को वो कॉलेज नहीं मिला और अगले साल मेरे को यही कोर्स उसमें नहीं रहेगा, तो मैंने बोला करके कि तेरे को क्या चाहिए क्या। तो उसने मेरे को लिख के दिया करके कि मम्मी ये कॉलेज में मेरे को यही कोर्स चाहिए। मैं बोला तू तू बिंदास रहे, मिल जाएगा। सिर्फ तू भरोसा रख करके कि और फीस भर दे। और मैंने उसका लिखने का चालू किया। कॉलेज के लिए थैंक यू बोला, सब स्कूल के लिए थैंक यू बोला, जो मेरी स्कूल थी जो मैंने पढ़ाई की थी उसके लिए थैंक यू बोला, लिखा सब। जो जो मेरे टीचर थे, जो जो मेरे को याद आए, जो कभी नाम याद आए उसके लिए थैंक यू बोला। जब भी नाम याद नहीं आए और चेहरा याद आया तो वो टीचर को थैंक यू बोला, हम लोग का गांव को थैंक यू बोला। और जो हम लोग ये अपना धरती माँ को थैंक यू बोला कि उसने हम लोग को इतना बड़ी स्कूल दी। तो जो पास का था उसके लिए भी मैंने थैंक यू बोला। और जो मेरा बेटा जा रहा है कि उसके कॉलेज में ये कोर्स है और मेरा बेटा ले रहा है वो कॉलेज और बैग पैक कर रहे हैं, सब 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 मैंने उसके लिए किया। और इस दिन 2 महीने के बाद उसने बोला करके कि मम्मी वो कॉलेज में ये टाइम यही कोर्स है। और उसने सब प्रोसेस तो कर दिया था। मैं बोला तेरे को मिलेगा ही मिलेगा। और उसके सेकंड ईयर ही वो कोर्स उसके लिए निकल गया। मगर जब भी उसने जब भी भरा था तभी वो कॉलेज उसको वही उसको जो चाहिए था वही मिला। और ये मेरा एक बड़ा अचीव था कि मेरा बेटे ने जो मांगा वो मिला उसको। और एक थैंक दूसरी शेयरिंग, एक अमेजिंग शेयरिंग है कि 4 साल पहले जब भी मैंने सेकंड टाइम मैजिक बुक की, हाँ सेकंड टाइम मैजिक बुक की, और तभी मेरी बेटी 9:30 की ट्रेन में गई थी वीटी। और वही 1 डेढ़ महीने पहले ही मैंने उसका चश्मा बनाया था, वो भी 8,000 का था। तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और उसको जो चश्मा था ना वो भी मैं उसको बहुत पसंद था। और इतना रश था कि चश्मा को ऐसा किसी ने हाथ लगा और इतना भीड़ में और चश्मा गिर गया। तो उसको खुद भी नहीं मालूम करके कि चश्मा गिरा किधर, प्लेटफॉर्म पे गिरा, टूट गया कि ट्रेन के नीचे गिरा, कुछ भी नहीं मालूम। और 1.25 घंटे दादर क्रॉस किया ना तभी उसको फोन निकालने को हुआ, क्योंकि इतना भीड़ था उसको फोन निकालने को ही नहीं हुआ। और जब भी फोन निकाला और मेरे को बोला मम्मी ऐसा ऐसा हुआ, तो मैं बोला तू टेंशन मत ले, तेरा चश्मा जो है ना वो पटरी पे ही है और वैसे के वैसे ही है, जैसा गिरा है ना उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। तो बोलते हैं मम्मी मिल जाएगा, मैं बोला मिल गया तो टेंशन मत ले। और तभी से मैंने जितना थोड़ा टाइम था मेरे पास उतना लिखा। और अराउंड 10:30, हाँ 10:30 11 बजा होएगा, और मैं विजुअलाइजेशन करती गई करके कि चश्मा मैं रोड पे जा रही है, टिकट निकाला, प्लेटफॉर्म पे गई और चश्मा ढूंढ रही थी और चश्मा वैसा का वैसा ही पड़ा है, चश्मा मेरे को दिख रहा है। सब सब जो 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 मैंने सोचा था ना सेम वैसे ही हुआ। और मैं 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंची पहुंची और ऐसे ही मैं देख रही थी, मैं और मेरी फ्रेंड की लड़की थी, ऐसे ही देख रही थी। भीड़ भी था उधर। और जो देखा तो दूसरी एक ट्रेन आ रही थी तो हम लोग पीछे हट गए तो फिर वो ट्रेन आई और चली गई। फिर थोड़ा रश कम हुआ और मैं जस्ट देखी ही और एक आदमी आया और मेरे को बोला करके मैम आप चश्मा ढूंढ रहे हैं। और मैंने बोला मेरे को तो वही दिमाग में था ना कि मेरा चश्मा पड़ा है। और उसने सीधा नीचे जंप मारा, सेम वैसा ही चश्मा पड़ा था जो मैंने विजुलाइज किया था। उसने चश्मा लिया और मेरे को दिया और वो आदमी चला गया। बाद में वो मेरे को दिखा ही नहीं वो आदमी, क्या मालूम किधर से आया। और मेरे को वो लगा करके मैं आज तक सोच रही कि उसको कैसे मालूम कि मैं चश्मा ढूंढ रही है। और मैं अकेली नहीं थी ना प्लेटफॉर्म पे तो और भी बहुत जन था। और सिर्फ मेरे को ही क्यों पूछा करती कि तुम आप चश्मा ढूंढ रहे हो। आज भी जब भी मेरे को ये याद आता है ना तो मैं सबके लिए, और वो आदमी का चेहरा भी अभी तक याद है। मगर 4 साल होके गए वही प्लेटफॉर्म पे मेरा आना जाना होता है, मगर आज तक उसको नहीं देखा है। ये मेरा 2 एक्सपीरियंस है ना, आज भी मेरे को गूज़बम्स आते हैं कि मगर तूने कैसा किया नहीं मालूम। यू। के लिए थैंक यू, भगवान को थैंक यू, यूनिवर्स को थैंक यू, इतना सब दिया। और
बहुत बहुत दे रहा है मेरे को। थैंक यू। और ये भावना का मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता था ना, जब भी मैजिक बुक मेरे को भावना ने बोला करके कि मासी ये मैजिक बुक है, करने का है, मैंने चालू किया, मगर बहुत लेसन ऐसा समझ में नहीं आता था करके कि क्या लिखूं क्या उसमें। और होमवर्क तो करने का है, मगर समझ, क्योंकि 25-30 साल से कभी हाथ में पेन नहीं लिया, और पेन लेने की भी एक खुशी थी, एक होमवर्क करने की भी खुशी थी। कभी भावना को मैं कभी रात को 8 बजे, कभी 10 बजे, कभी सुबह मैसेज डाल देती थी कि भावना मैं तेरे को कभी फोन करूं। मेरे को ऐसा लगता ही नहीं था करके कि मैं उसको डिस्टर्ब कर रही है, नहीं, मेरे को ये चाहिए तो उस वो टाइम मेरे लिए निकाल देगी, वो मेरे को विश्वास था मेरे यूनिवर्स पे। और वो टाइम निकाल के मेरे को पूरा लेसन समझाती थी। और उसने भी मेरे को मतलब लेसन समझाने में बहुत बहुत हेल्प की, इसके लिए भावना का भी बहुत बहुत थैंक यू। और खुद को मैंने चेंज किया, इसके लिए भी मैं खुद को भी थैंक यू बोल रही है करके कि मैंने खुद को प्यार किया। आज भी मैं मिरर वर्क भी करती है और मैजिक बुक भी करती है, और आज भी मेरा वो चालू है। इसके लिए बहुत बहुत थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अपने लाइफ में ये पावर इतना ज्यादा लाने के लिए। एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग। यू। Anybody else would like to? एंड बैना मासी, आपने सिर्फ वो चश्मे के लिए और वो उसके लिए नहीं, आपने हर एरिया में किया है। हर एरिया में, हर एंड एरिया में, यस, रिलेशन दिस इज में, हर जस्ट एरिया में। जस्ट अ बिगिनिंग। एंड ऑल्सो जो एरियाज नहीं वर्क कर रहे वो भी आप ही ने क्रिएट किए हैं। हाँ सो हाँ यस, हाँ। आज हर यस चीज को हम यस। ओन अप कर रहे हैं। तो यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड योर ओपननेस। मजा आया सुन के। या and she also summarized this magic book for us. The whole magic book is about तुम्हारे जो भी एरियाज है उसको सिर्फ ग्रैटिट्यूड से भर दो। कुछ भी ये बुक नहीं करो, कुछ भी नहीं करो, सिर्फ हर एरिया में ग्रैटिट्यूड दो, वो एरिया खिल जाएगा। दैट इज लाइक नर्चरिंग एंड वाटरिंग दैट एरिया। तो यस। तो भावना एक सजेशन है कि सब लोग कुछ भी नहीं, अगर याद आया ना, तो सिर्फ अपना पेरेंट्स का, जिसने हम लोग को हाँ, जन्म दिया, बस रोज 5-5 ग्रेटिट्यूड लिखो। उससे भी लाइफ में, मेरे लाइफ में बहुत चेंज आया है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। परफेक्ट परफेक्ट। वी विल टॉक अ लिटिल मोर अबाउट दिस सोर्स रिलेशनशिप। बट ये बहुत ही बड़ा हिंट है कि जहां हमारे रूट्स है, अगर उसको नरिश करेंगे तो लाइफ खिलेगी। एंड आवर रूट्स आर आवर पेरेंट्स। एंड समवेयर उनको इनफ ग्रैटिट्यूड नहीं दिया है, इसलिए ये पेड़ फुल्ली बढ़ नहीं रहा है। तो बस उनको भी प्यार देना शुरू करेंगे, दिस एरिया, दिस लाइफ विल ओपन अप। So we can end on that, just giving love to ourselves, our parents, our life, and everything in life, all the magic. And also, आज पेड़ पौधे, galaxies, stars, sky, just let's get present to that. Let's get aware of that. Let's start seeing power in all of that and acknowledging that. You know. किसी को है कुछ, or else we end. Okay. All right. Thank you everybody for being here and see you Thank you. tomorrow. Take care. Thank you.